Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope all of you are fine and enjoyed the Eid ul Azha also. Now let's resume our online classes with the lecture number 5 of chapter 1, Introduction to Computer. As usual, first we have the recap of the previous lecture. In the previous lecture, we discussed classification of computer that are according to purpose. According to purpose, there are two classes that are general purpose computer and the special purpose computer. General purpose computers are designed to fulfill the general need of the user, and the special purpose computer are designed for specific need of any single person or any single organization. The second classification according to data handle, which are analog computer, digital computer and hybrid computer. These computers are used to handle the data. Analog computer handle the data which are physical basis, and the digital computer are handle the dead data which are based on number that are 0 and 1, and hybrid computer is a combination of analog and digital computer. They convert analog signal into digital and digital signal into analog. And in previous lecture I give you the examples of all these classes of the computer. The third classification of computer is according to size and capacity, which we will be discuss in this lecture. In today's lecture, first we discuss the classification according to size and capacity, in which we discuss 4 computers: supercomputer, mainframe computer, mini computer and microcomputer. As well as we also discuss the impact of computer on society. Here we discuss 2 impact on education and on workplace or business. We also discuss internet and society. How internet impact on society, either positive impact or negative impact. Third classification of computer is according to size and capacity, in which first we discuss supercomputer. Here are the some characteristics of supercomputer. Supercomputer is most powerful and fastest machine of computation. It can perform 50 million operation in a second. कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस स्पीड में सुपर कंप्यूटर का मुकाबला नहीं कर सकती, बिकॉज इट परफॉर्म ऑपरेशन इन फ्लॉप्स. फ्लॉप्स मीन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. फ्लॉप्स का मतलब ये है कि मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म इन अ सिंगल सेकेंड. और हमें ये कैलकुलेशन कब ज़रूरत पड़ती है, और ये कैलकुलेशन ज़्यादातर ऐसी कंप्यूटेशनल इक्वेशंस में ज़रूरत पड़ती है जो साइंस से रिलेटेड होती है या इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है. So it is designed to calculate complex calculation at fastest speeds. That's why these computers especially used to solve problem related to science and engineering. एज़ इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको क्वांटम कंप्यूटिंग का बताया था, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में यही कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, बिकॉज इट आर यूज टू solve a complex calculation at fastest speed. As well as these computers are very big in size and they can store large amount of data. Third characteristic is due to its specialized nature, it supports small number of user. Why small number of user? Because supercomputer is not used for general purpose. ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटिंग डिवाइस है और इसके यूज़र भी बहुत कम है, और चूँकि इसकी प्राइस भी बहुत हाई होती है, तो ओनली फ्यू कंट्री, आई एम सेइंग दैट कंट्री कैन अफोर्ड दिस कंप्यूटर. And Alhamdulillah, Pakistan also has supercomputer and use this computer by government level. As I told you student, that supercomputer is most powerful computer. It's a fastest machine and most expensive computer also. मैंने अभी आपसे कहा कि only supercomputer can be afforded by the country level पर. सो हम देखते हैं कि दुनिया में कितने ममालिक हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं जिनके पास सुपर कंप्यूटर है. यहाँ हम 500
सुपर कंप्यूटर की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि दुनिया के कौन से ममालिक हैं जिनके पास सुपर कंप्यूटर मौजूद है। अकॉर्डिंग टू सर्वे जो कि जून 2020 में किया गया है, उसके हिसाब से 226 पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स आर लोकेटेड इन चाइना। उसका जो कॉम्पिटिटर है डेट इज़ यूनाइटेड स्टेट, उसके पास 114 सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं। तो दुनिया के 340 सुपर कंप्यूटर्स सिर्फ इन दो कंट्रीज़ के पास हैं, डेट इज़ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। इसके बाद जो बाकी के कंप्यूटर्स हैं दैट आर जापान, फ्रांस एंड जर्मनी। तो बाकी कंप्यूटर इनमें डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इन कंट्रीज़ के पास मोर देन वन कंप्यूटर है। लेकिन बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है और कोरिया है, इसी तरह जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके पास भी सुपर कंप्यूटर है, बट दे आर नॉट मोर देन 1 और 2 इस तरह होंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर की है दैट्स आर लोकेटेड इन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। Here I also gave the top 5 सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने इन 5 नाम आपको यहाँ पर लिस्ट किए हैं। आपने एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, जो आपका असाइनमेंट होता है उसमें आपने इन पांचों कंप्यूटर्स किस कंट्रीज़ के पास हैं और इनकी क्या रैंकिंग है, कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है, कौन सा नंबर 3 है, इसके बारे में आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, जो मैं आपका लास्ट में बताऊंगी। तो ये जो टॉप 5 सुपर कंप्यूटर के नाम मैंने यहाँ दिए हैं, आपने मुझे बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और कौन सा कंप्यूटर नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है। आपने इसको रैंक भी करना है। Now we discuss application. Application mean where the supercomputers are used at that time or in which field we use the supercomputer. Supercomputer play an important role in the field of computational science or experimental science, and it also perform intensive tasks in various fields like it used for weather forecast यानी आपकी प्रिडिक्शन करना कि वेदर कैसा रहेगा, कहीं पर सुनामी है या जिस तरह की भी वेदर की कोई भी प्रिडिक्शन है, वो उसको करने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर कोल्ड टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक वेपन्स। सुपर कंप्यूटर ऑफर्स टूल्स फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग। न्यूक्लियर वेपन्स को डिज़ाइन करना और या एटम बम यानी न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है। अगर वो टेस्टिंग हम फिज़िकली करें तो हम बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होगी। तो इसके लिए इसको टेस्ट किया जाता है कि आइदर आपके वेपन सही काम कर रहे हैं या नहीं। आपने अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है तो वो बॉम्ब सही तरह से एक्सप्लोज हो रहा है या नहीं। तो उसको फिज़िकली टेस्ट नहीं किया जाता, उसको टेस्ट किया जाता है, कंप्यूटराइज उसके टेस्ट किए जाते हैं, एंड दैट टेस्ट इज़ कॉल्ड कोल्ड टेस्टिंग। और ये कोल्ड टेस्टिंग हमेशा सुपर कंप्यूटर की मदद से ही की जाती है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड क्वांटम मैकेनिज़्म। तो क्वांटम मैकेनिज़्म आपको मैंने बता चुकी हूँ कि अब आगे जो भी रोबोट के से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आगे जो भी काम हो रहा है रोबोट पर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो उन सब के लिए जो कंप्यूटर यूज़ होगा दैट इज़ सुपर कंप्यूटर। जी स्टूडेंट्स, सुपर कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज इन फिल्म इंडस्ट्रीज टू क्रिएट अ CGI. What is CGI? CGI mean computer generated images या computer generated imaginary scenes. CGI is a application used in the field of computer graphics and used in film, TV, commercial and especially साइंस फिक्शंस मूवीज़। आप और मैं, बल्कि हम सब बहुत शौक़ से मूवीज़ देखते हैं, स्पेशली साइंस में फिक्शंस की मूवी, जिसमें स्टार वॉर है, जुरासिक पार्क है, लॉर्ड ऑफ द रिंग है, मैट्रिक्स है, मिशन इम्पॉसिबल के बहुत से सीन हैं। तो हम बहुत सारी ऐसी साइंस फिक्शंस की मूवीज़ या एक्शन मूवीज़ देखते हैं। तो उसमें जो भी स्टंट आप देख रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो रियल होते हैं? नहीं, आप और मैं ये रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये जो रोल आपको दिख रहे होते हैं कि मैट्रिक्स में या मिशन इम्पॉसिबल में या और भी जो भी साइंस फिक्शंस की मूवीज़ में है, तो वो सब रियल नहीं होते। उनको
फिल्माया जाता है और फिल्माने के बाद उसको चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन CGI यूज़ होती है, जिसमें ये जो सीन्स हैं या जो इमेजिनरी सीन्स होते हैं ये क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सीन्स आपके साथ बहुत छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि सुपर कंप्यूटर इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन फिल्म इंडस्ट्री टू मेकिंग अ साइंस फिक्शन मूवीज़ और ऑल्सो क्रिएट द रोबोट, और ये जो सब चीज़ें हैं ये हम जो भी कुछ हम देखते हैं इट्स यूज विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर। Second classification of computer according to size and capacity is mainframe computer. Mainframe computers are expensive machine and their main concern to prove cost effectiveness. मेन फ्रेम कंप्यूटर भी प्राइस के लिहाज से एक्सपेंसिव होते हैं एंड ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर क्रिटिकल ऑपरेशंस या ऐसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, साइंटिफिक इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ सुपर कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस। तो मेन फ्रेम इज़ ऑल्सो द डिवाइस विच इज़ यूज टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बट इसकी प्राइस जो है वो सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में कम होती है। It has cabinet containing big centralized machine that contains the large memory, huge storage space, multiple high-grade processor. Actually, mainframe computer एक सेंट्रलाइज मशीन होती है या CPU उसको कह सकते हैं, सिस्टम यूनिट होते हैं जिसके साथ बहुत सारे वर्क स्टेशन जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए हम इसको कैबिनेट कंटेनिंग बिग सेंट्रलाइज मशीन कहते हैं कि जिसके अंदर मेन सर्वर मौजूद होता है और उसके साथ बहुत सारे वर्क स्टेशन या बहुत सारे टर्मिनल अटैच होते हैं। सेंट्रलाइज मशीन या सेंट्रलाइज कैबिनेट जो मशीन सिस्टम यूनिट होता है वो रिसोर्सेज को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, और टर्मिनल जो इसके साथ अटैच होते हैं वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन जितना भी डाटा है वो तमाम इस मेन मशीन या सेंट्रलाइज CPU के अंदर सेव हो रहा होता है। एंड दिस डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर लार्ज huge amount of data because it has a large memory, huge storage space, और इसमें हम बहुत सारे प्रोसेसर यूज़ होते हैं जो कि कैलकुलेशन को परफॉर्म इन अ वेरी हाई फास्टेस्ट स्पीड। The next characteristic of mainframe computer is that it is a central data hub in a corporation's data processing center linked the user through the less powerful devices such as workstations और terminal। अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें एक सेंट्रलाइज मशीन होती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने एक मेन सर्वर जिसे सेंट्रल डाटा हब कहते हैं वहाँ पर एक तमाम डाटा एक ही जगह पर स्टोर हो रहा होता है और वहीं से डाटा रिट्रीव भी हो रहा होता है और वहीं पर डाटा सेव भी हो रहा होता है। लेकिन कहाँ से रिट्रीव, कौन रिट्रीव कर रहा है, कौन सेव कर रहा है, ये डिफरेंट कॉर्पोरेट लेवल्स पर होता है। जैसे अगर कोई कंपनी है और उसका एक मेन हेड ऑफिस है और ये मेन ऑफिस डिफरेंट स्मॉलर ऑफिस को या उससे लिंक जो नेटवर्किंग उसकी होगी उसके साथ कनेक्टेड है, तो जो मेन हेड ऑफिस होगा वहाँ पर एक मेन सर्वर मौजूद होगा जहाँ पर तमाम डाटा स्टोर हो रहा है। वहीं से डाटा रिट्रीव किया जाता है बाय डिफरेंट ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस जो है वो डाटा रिट्रीव भी वहीं से करती हैं और वहीं पर डाटा सेव करती है। तो आपका एक मेन हब है जहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा है एंड और ये लिंक कर रहा है डिफरेंट वर्क स्टेशन और टर्मिनल के ज़रिए डिफरेंट ब्रांचेस में या डिफरेंट ऑफिसेस में। So these connected branches of that main head office has a terminal, or that terminal consists of monitor and keyboard that used to enter and retrieve the information from centralized data hub। तो जो ब्रांचेस में जो डाटा रिट्रीव हो रहा होता है और या डाटा इनपुट हो रहा होता है तो उसके लिए कीबोर्ड और मॉनिटर वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। जब आप टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो आप न्यूज़ कास्टर के सामने दो चीज़ें देखते हैं, एक है मॉनिटर और कभी मॉनिटर नहीं भी होता, लेकिन मॉनिटर एंड कीबोर्ड। आपको कहीं पर भी वहाँ CPU नज़र नहीं आ रहा होता बिकॉज दे हैव अ टर्मिनल। जिनके पास सिर्फ मॉनिटर और कीबोर्ड हो रहा
सामने होता है और उनकी जितना भी डाटा वो इनपुट कर रहे होते हैं, जितना भी डाटा वो शो कर रहे होते हैं, रिट्रीव कर रहे होते हैं, दैट्स ऑल आर लोकेटेड इन अ देयर सेंट्रल डाटा हब. Now, the application of mainframe computer. Mainframe computers are used to keep the record of their customer in bank. आप देखें, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल एटीएम मशीन है. आप एटीएम से कहीं पर भी आपकी बैंक की ब्रांच कहीं पर भी हो, लेकिन आप किसी भी एटीएम से अमाउंट को आप अमाउंट निकाल सकते हैं. लेकिन जब आप अमाउंट निकालते हैं तो वो उस पर्टिकुलर ब्रांच जिसका आप एटीएम यूज़ कर रहे हो तो उससे पैसे नहीं कटते, पैसे आपकी मेन ब्रांच से कटते हैं. तो यहाँ पर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रलाइज डाटा हब है. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो मेन थिंग है दैट इज़ इट्स अ सेंट्रलाइज डाटा हब, जहाँ पर मेन तमाम डाटा सेव हो रहा होता है. अब आप उसके बाद उसकी ब्रांचेस कहीं पर भी हों, जहाँ से भी वो डाटा को यूज़ करेंगी, इनपुट करेंगी, इंफॉर्मेशन लेंगी, तो वो उस सेंट्रलाइज हब से ही सारा काम होगा. सेम लाइक डैट एटीएम मशीन है. एटीएम मशीन में आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, आप अमाउंट निकालते हैं और उसके बाद आपका अपने बैंक में इसका रिकॉर्ड डालते हैं. सेम लाइक डैट आप अपने घरों में बैठ के एयरलाइंस जो है वो आपको अपने फ़्लाइट शेड्यूल बता देती हैं. आपको अपनी टिकट बुक करवानी हो तो आप आराम से अपने घरों में बैठ के आप ऑनलाइन टिकट्स, अपनी ऑनलाइन सीट बुक करवा सकते हैं. सेम लाइक दैट गवर्नमेंट कैन कीप द ट्रैक ऑफ सिटीज़न कि उनके सिटीज़न कैसे हैं, कैसे करते हैं वो ट्रैक थ्रू द, आप देखें हमारे नादरा ऑफिस में हमारे जितने भी आईडी कार्ड्स हैं वो उसमें हमारे पास आईडी कार्ड पर एक चिप मौजूद होती है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए ये तमाम काम करती हैं. The third category according to size and capacity is mini computer. It is a small computer that is intermediate between a microcomputer and a mainframe in size, speed and capacity. मैंने अभी तक आपको मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर एक्सप्लेन किया और उसमें मैंने कहा दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर, एक्सपेंसिव कंप्यूटर. तो मिनी कंप्यूटर जो हैं दे आर ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, टू गेटिंग द इंफॉर्मेशन, टू यूज़ डिफरेंट रिसोर्सेज हम मिनी कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं. बट ये मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर से, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर से डिफरेंट किस तरह है, बिकॉज इट्स अ साइज़ के हिसाब से इट्स अ स्मॉलर देन द मेन फ्रेम and supercomputer. Same like that, its speed and capacity is also lower than the supercomputer and mainframe computer. It is a multi-processing system having terminal attached and capable of supporting 4 to 200 user. मैंने अभी आपको बैंक की एग्जांपल दी थी, या कोई भी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड ऑफिस जो है जहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ हो रहा है. अब उसकी जो लिंक ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस में मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि इट्स अ एक्सपेंसिव कंप्यूटर. तो अपनी जो मेन जो ब्रांचेस हैं हेड ऑफिस के साथ, जो भी डिफरेंट ब्रांचेस उसके साथ कनेक्टेड है, उन ब्रांचेस में वो वहाँ पर मिनी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज कॉस्ट के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से, कैपेसिटी के लिहाज से जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफ़िल कर रहा है. तो इट्स अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी इसके ज़रिए हम बहुत सारे काम एट द टाइम हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. एंड इट कैन सपोर्ट 4 to 200 यूज़र. These computers are very popular in time sharing requirement. चूँकि ये मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है तो मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेयर योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मल्टी प्रोसेसर आप बहुत सारे काम एट द टाइम आप परफॉर्म कर सकते हैं. तो द मिनी कंप्यूटर आर यूज इन दैस एरिया वेयर टाइम is very important, or how you can perform in a less time. Now the application of the mini computer. Mini computers are used in small companies where capacity and speed of the operation is not highly critical. जैसे मैंने आपको बताया है कि मिनी कंप्यूटर्स अक्सर वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर के हेड ऑफिस और उसके बाद उसकी मेन ब्रांचेस में.
तो मेन ब्रांचेस में चूँकि स्पीड और कैपेसिटी जो है वो इतनी क्रिटिकल नहीं होती, क्योंकि वो तमाम चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं सेंट्रलाइज हब के ज़रिए। तो इसलिए मुख्तलिफ़ कंपनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने हेड ऑफिस में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करती हैं, और इन स्मॉल उनकी ब्रांचेस जो होती हैं वहाँ पर वो अपने मिनी कंप्यूटर्स के ज़रिए काम को हैंडल्स करती हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ यूज़ करती हैं मिनी कंप्यूटर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टू हैंडल द वर्क load where speed and capacity is not highly critical. स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको 3 कैटेगरी एक्सप्लेन की है अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड कैपेसिटी में: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर. फ्रॉम सुपर कंप्यूटर टू मिनी कंप्यूटर यू नोटिस दैट कि कंप्यूटर का साइज़, कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की प्राइस और कंप्यूटर की कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिक्रीज़ होती जा रही है. यानी सुपर कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटर हैं और मिनी कंप्यूटर जो है इट्स नॉट अ वेरी पावरफुल, और इसे हम मुख्तलिफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं. तो जैसे जैसे क्लासिफिकेशन हम नीचे की साइड पर आ रहे हैं, चीज़ें उनकी साइज़, कैपेसिटी, प्राइसेस, स्पीड और उसकी फास्टेस्ट स्पीड ये कम होती जा रही हैं. लेकिन कंप्यूटर जहाँ जिस कंप्यूटर की नीड है वो वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़. अब हम डिस्कस करते हैं वो कंप्यूटर जो हम सब यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर. चारों क्लासिफिकेशन में सबसे स्मॉलर कंप्यूटर दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर. दीज कंप्यूटर्स आर चीपर इन कॉस्ट बट इंक्लूड लार्ज मेमोरी, रैपिड अपडेटिंग, मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग एबिलिटी. माइक्रो कंप्यूटर को हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, स्कूल में यूज़ करते हैं. तो ये हमारी रिक्वायरमेंट को, हमारी नीड को फुलफ़िल करते हैं. दीज कंप्यूटर्स आर पावर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर, समटाइम दे आर रेफर एज सिंगल चिप प्रोसेसर. चूँकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा होता है एज ए इंटरनल कंपोनेंट, एंड सो वी कैन से दैट इट्स अ माइक्रो प्रोसेसर computer also. These computers are very easy to operate and have 4 KB to 2 MB memory. सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, मिनी कंप्यूटर हो, लेकिन सबसे आसान यूज़ करना हमें माइक्रो कंप्यूटर लगता है, क्योंकि इसमें हमारे पास हम इसको मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पसेस के यूज़ कर सकते हैं. इसमें हमारे लिए जो जितनी हमें कैपेसिटी स्टोरेज के लिए चाहिए होती है वो अवेलेबल होती है. इसकी मेमोरी ऐसी है कि उसमें हम अपना काम को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं. तो माइक्रो कंप्यूटर इज़ द स्मॉलेस्ट computer as compared to the previous classification. Microcomputer is multitasking computer but it has less speed than the previous computer. G. The application of microcomputer. Microcomputer are used by individuals for writing, illustrating, budgeting, playing games and communication with other computer. As I told you that के microcomputer वो कंप्यूटर है जो इस वक्त सब जगह यूज़ हो रहा है, चाहे वो किसी स्कूल में है, चाहे बैंक्स में है, ऑर्गेनाइजेशन में है. हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है एज ए इंडिविजुअल. अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, उसे बजटिंग करना है अपने ऑफिस का, या उसे होटल्स में यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर इज़ आवर पर्सनल कंप्यूटर. वी कैन से दैट इट्स अ PC personal computer and it is used in everywhere, in every field of life. Now our next topic is impact of computer on society. Student, as you know that the extreme increase of use of the computer has changed the lives of many people, and computer can serve many purposes such as an aid for research, finalizing the work and keep with the contact with your loved one, your relatives. We can use the computer in every field. You can see that online banking, बिज़नेस इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है. इट इज़ यूज़ फॉर ऑनलाइन गेम. आप उसको ऑनलाइन गेम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. इट्स ऑल्सो यूज़ फॉर ऑनलाइन शॉपिंग. ई गवर्नमेंट है, ई कॉमर्स है, और नाउ आप देख रहे हैं हम कंप्यूटर को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं. तो कंप्यूटर इस वक्त हमारी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है. आइदर इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट. इसको हम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लेंगे, जैसे कि हम अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को हम इसे पॉजिटिव और एक इम्पैक्ट लेंगे कि इस वक्त हम
हम बेशक हम कोविड-19 की वजह से हम अपनी स्कूल्स नहीं जा रहे, लेकिन हमने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा हुआ है. तो इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटर वी कैन कंटिन्यू आवर ऑनलाइन स्टडीज़. इसी तरह अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं. हम तो बहुत सारी चीज़ों में इस वक्त कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों नहीं, बल्कि मैं कहूँगी इस वक्त कंप्यूटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in each field of life and in each person's life. Okay student, now we discussed how the computer impact on education. Computers have supplied infinite resources for learning and made education more flexible and easy to access. Students can now gain knowledge and information not only from classroom assignments and libraries but also from available online resources. Here we discuss computer impact on education at primary level, high level and tertiary level. First, at primary level. At primary level, it is used for audio visual aids in the teaching of various subjects. स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि अगर हम अपनी एक्सप्लेनेशन में, अपनी टीचिंग में ऑडियो विजुअल हेल्प लेंगे तो हमें लेसन को समझने में भी आसानी होगी एंड इट हेल्प टीचर टू मेक द लेसन इफ़ेक्टिवली एंड स्टूडेंट्स लर्न एंड रिटेन द कॉन्सेप्ट बेटर एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. जी स्टूडेंट, जो लेक्चर आप अभी सुन रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं या इससे पहले आपने जितने भी लेक्चर्स सुने हैं या देखे हैं, दैट इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन द टीचिंग. At the high level, children become more and more proficient in using the computer. At this level, students are more familiar with the computer technology and they use computer more effectively than the at primary level. Computer is not only helpful in the primary level or secondary or higher level, but it is also helpful in tertiary level. Tertiary level mean the student now in a college, university or also getting the education from in different professional college. At that level, computer is really very helpful for the student. By using the computer at that level, they can enhance their learning ability and they become more smarter and quicker in their studies. News, assignment, test, lecture, notes can be placed on the internet for the student to access both at school and from home. So स्टूडेंट के लिए अब बहुत एक खुला इन्वायरमेंट है. देखिए, वो चाहें तो स्कूल में या यूनिवर्सिटी में आप लेक्चर्स ले सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए यू कैन टेक द कंप्यूटर हेल्प बिकॉज कंप्यूटर प्रोवाइड सो मेनी इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड आपके पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर मौजूद होती हैं जो आपके असाइनमेंट्स पर, आपके लेक्चर्स में आपके लिए हेल्पफुल होती हैं. स्पेशली ऑनलाइन स्टडी इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो स्टूडेंट या वो लोग जो ऐसे एरिया, रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं या कॉलेजेस नहीं हैं, तो वो अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन एजुकेशन बेसिस पर वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं. बहुत सी यूनिवर्सिटी, बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और वो उन अपने स्टूडेंट्स को डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं. और अब कोविड-19 की वजह से अब हम स्कूल लेवल पर भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं. हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और आपसे इंटरेक्शन रहती है, कम्युनिकेट करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल. Okay, now we discuss the impact of the computer on workplace और business. यानी कंप्यूटर किस तरह हमारे बिजनेसेस को इन्हांस कर रहा है, हमारी वर्क प्लेस जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वहाँ पर किस तरह ये ह्यूमन की जगह लेता जा रहा है. तो बिज़नेस पर भी कंप्यूटर का इस वक्त एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट मौजूद है. So due to advancement in computer technology in every large business, computer have begun taken the place of human like warehouse and factories. तो businesses में computer सिर्फ एज ए पेरोल, एज ए
इन्वेंट्री कंट्रोल एज ए बजटिंग यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि अब कंप्यूटर रोबोट जो हैं वो ह्यूमन की जगह ले रहे हैं, और रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बाय रोबोट एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। इससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, बल्कि काम का इफ़ेक्टिवनेस बढ़ रही है, काम बहुत तेज़ी से परफॉर्म होता है। इंसान हम ह्यूमन थोड़ा काम करते हुए थोड़ा सा लेज़ी भी हो जाते हैं, बट रोबोट नॉट। रोबोट can perform each and everything very effectively and very accurately. There would be increase in productivity which would not have happened if it were still human working. It's mean that computer increase worker productivity. Employees are able to do more in less time. From software spreadsheet calculation to high speed data communication to database for storing and accessing the vast amount of data, computer allow employees to focus more on value added task and less on routine task. तो कंप्यूटर का यूज़ आपके वर्कर्स की, आपकी एम्प्लॉय की एबिलिटी को भी इन्हांस करता है, एंड दे गिव द मोर वैल्यू एडिड प्रॉफिट, वैल्यू एडिड टास्क, और आपकी प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ करता है। और स्पेशली इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आपके बिजनेस को इन्हांस करता है, और जितना भी आप कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी बिजनेस स्किल को, आपकी बिजनेस प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है। Another impact is that store uses computer to keep tracks of the files, and many stores have also start using cash register that are computers, and almost all business keep record on a computer. Many business houses use electronic cash register. Electronic cash registers offer businessmen many benefits, including tracking customers' transaction and speeding checkout time. Even low-cost cash register include function to record sales, calculate changes, provide price lookups, and print customer receipt. Now we discuss new topic, that is internet and society. What is internet? Internet is the largest network of the world that connect computer located at different part of the world. For internet we are using the term net. Actually it is a public communication worldwide network. The internet has a huge impact on the society. The internet is available to millions of the people. The internet provides scientists, engineers, researchers, educators, students, business people, consumer and other with a variety of services. तो इंटरनेट जो है वो हम सबको बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोफेशनल, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर विश. सो इट क्रिएट अ न्यू वे टू कम्युनिकेट, congregate and share the information with each other. Internet is a global system of interconnected computer networks that use the internet protocol to communicate between network and devices. हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं एक्चुअली हम ग्लोबली दुनिया के साथ हम कनेक्टेड होते हैं. तो दुनिया से ग्लोबली कनेक्टेड होने के लिए हम एक नेटवर्किंग यूज़ करते हैं. तो नेटवर्किंग क्या है? नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड कम्युनिकेट टू ईच अदर. तो इस तरह हम पाकिस्तान में बैठे हुए दूसरे ममालिक में अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से कनेक्टेड हो सकते हैं. उनसे हम चैटिंग करते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, हम उनके साथ रिसोर्सेज शेयर करते हैं, उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी विशेज़, अपनी सब चीज़ें एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, जो कि हम पहले ज़माने में नहीं कर सकते थे. तो इंटरनेट प्रोवाइड अस फैसिलिटी टू कम्युनिकेट द पर्सन विच इज़ नॉट इन आवर कंट्री, मे बी इट्स आउटसाइड द कंट्री, मे बी इट्स आउट ऑफ द सिटी. तो हम किसी के साथ भी या अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट, ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हैं. आइदर इट्स बिजनेस टॉक, आइदर इट्स अ फैमिली टॉक, आइदर किसी भी किस्म की टॉक के ज़रिए या किसी किस्म की चैट या हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं.
So it provides the information and services as well as the ability to communicate to people all around the world in the variety of the. हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? अब हमारे पास बहुत सी ऐसे मीडिया हैं, बहुत सारी सी हमारे पास सोशल मीडियाज़ एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं. फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है. तो आप सब ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. तो हमारे पास इंटरनेट ने हमें ऐसी बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ वे के ज़रिए लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. इंटरनेट प्रोवाइडेड मैनी सर्विसेज to the scientists, engineer, researcher, educator, student, businessman, पीपल और कॉमन पीपल, कंज्यूमर, यानी हर तरह के लोगों के लिए इंटरनेट बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट ग्लोबली. अब वो सर्विसेज क्या हैं? फर्स्ट इज़ ईमेल. ईमेल इज़ अ प्रोसेस ऑफ sending messages directly from one computer to another. So internet user can send mail, messages, data files, software program to other internet user through the email. Voicemail is a system in which a spoken message is digitized and then it transferred to the other यूज़र और द पर्सन जिसको आप अपनी वॉइस मेल भेजना चाह सकते हैं. तो आप ईमेल भी कर सकते हैं और आप वॉइस मेल भी कर सकते हैं. The next service which internet provide that is internet telephone. The internet phone capability lets you call people at other computer on the internet. तो आपने ये सर्विस यूज़ की होगी थ्रू द स्काइप, बॉटम, व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए भी. तो आपके पास इंटरनेट आपको बहुत सी सर्विसेज, बहुत सी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट टेलीफोन कर सकते हैं. The internet is the best source to sharing the information to other. तो इंटरनेट हमारे पास हमें बहुत सी एप्लीकेशंस के ज़रिए हमें, जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इसी तरह आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं. तो इसके ज़रिए आप अपनी बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं अपने दूसरों के साथ. और इसी तरह बिज़नेस में भी करते हैं और फ्रेंडली भी करते हैं, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, फैमिली में. तो आपको इंटरनेट आपको बहुत सी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ. टेलीमेडिसन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेट सर्विस. इंटरनेट से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से हम ट्रीटमेंट करवाते हैं. लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसे कि हमें कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ग्लोबली यानी दूसरे बाहर के ममालिक से अपनी ट्रीटमेंट करवानी होती है या अपनी रिपोर्ट्स भेजनी होती है. तो टेलीमेडिसन अलाउ द मेडिकल स्पेशलिस्ट इन वन सिटी टू डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट इन द another city. So it's a very important service which the internet provided. नेक्स्ट वन इज़ ऑनलाइन सर्विसेज. ऑनलाइन सर्विसेज को तो आई नो स्टूडेंट आप सब जानते होंगे. आजकल ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स की इस टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. हम ऑनलाइन अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन हम अपनी चीज़ों को मंगवा सकते हैं. इस वक्त बहुत से स्टोर्स, बहुत सी कंपनीज़ ऑनलाइन अपनी बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही हैं. और एट दैट टाइम जब कोविड-19 के वक्त तो ऑनलाइन सर्विस सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है. So in Pakistan, many companies offer a wide range of services during COVID-19. जी, next one is a video conferencing. Video conferencing is the teleconferencing whose component usually include a large screen, video camera and an online computer system to record the communication among the participants. आप सब ने ज़ूम क्लासेस भी अटेंड की हैं. इसके साथ साथ आपने ज़ूम क्लासेस हैं या ऑनलाइन क्लासेस जब बहुत से इस वक्त यूज़ हो रही हैं तो उसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्पेशली बिजनेस साइड पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. इंटरनेशनल कंपनीज जब अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करती हैं और अपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको इस्टेब्लिश करती हैं तो तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनको इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. द नेक्स्ट वन इज़ द इंस्टेंट बैंकिंग. इंस्टेंट बैंकिंग की टर्म इस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. आप अपने घरों में बैठ के बिल पे कर सकते हैं. आप अपने चेक को एक जगह से दूसरी जगह एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो इंस्टेंट बैंकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट बैंक्स.
Internet provides so many benefits to us and we get the so many advantages from internet, but there are some harmful social and cultural effects associated with the internet use which damage both individual and society. So here we discuss some negative impact of the internet on the society or students. Internet addiction is defined as any online related compulsive behavior which interferes with normal living and causes severe stress on family, friends and work environment also. Especially online games on the internet can be addictive to teenagers, children and adults. तो एक एडिक्शन जो है हमारी कंप्यूटर की, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेसफुल बना रही है। हम डिप्रेशन में होते हैं, हम लोगों के साथ जो एक हमारे मिल के बैठने वाला एनवायरनमेंट था वो हमारा ख़त्म होता जा रहा है ड्यू टू दिस इंटरनेट सर्विसेज. Cybercrime is another negative impact of internet. Cybercrime is a computer-oriented crime in which the computer may be used in the commission of crime or it may be the target. Cybercrime may be threaten a person or a nation's security and the financial health or financially also. जैसे कि हैकर्स हैं जो कि आपकी पूरी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं और आपका डाटा जो है वो स्टॉल कर लेते हैं. इसी तरह एक क्राइम जो है साइबर क्राइम ऑनलाइन हैरेसमेंट भी है. इसके साथ साथ साइबर क्राइम ये भी है कि आपके कंप्यूटर में वायरस को स्प्रेड कर देना. तो इस वक्त साइबर क्राइम भी एक इंडस्ट्री है, कंप्यूटर की इंटरनेट इंडस्ट्री है जिसके ज़रिए बहुत सारे स्कैम्स जो है वो किए जा रहे हैं. द नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इज़ अ फिज़िकल डेवलपमेंट. हम जितना ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते जा रहे हैं, हम कंप्यूटर के एडिक्शन हो रहे हैं, हम उतना ही फिज़िकली एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं. हम गेम्स मोबाइल पर खेलने शुरू हो गए हैं, जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थी वो हमारी ख़त्म हो गई थी. इसी तरह बहुत सी एक्टिविटी हमारी जो अंदर से हमारी ख़त्म होती जा रही है, जो कि हम जितना कंप्यूटर का यूज़ हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा है उतनी ही फ़िज़िकल डेवलपमेंट हमारे अंदर या फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे अंदर ख़त्म होती जा रही है. द नेक्स्ट वन इज़ people become lazy. There are so many people spend a lot of hours, even an 8 hour all the day on entire internet. They play games, read books, listen to music or across their favorite website without caring to study or work. तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर चीज़ जो है कंप्यूटर पर है. हमने अगर काम कर रहे हैं तो हम बुक्स भी हम उसी पर पढ़ रहे हैं. हम इतनी मेहनत नहीं करते कि जाके एक बुक ख़रीदें, उसको लाए, उसको पढ़ें. हम कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर पर ही हम बुक को रीड कर ले. इस तरह ऑनलाइन गेम, स्पेशली ऑनलाइन गेम्स जो हैं जिसमें हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं बस गेम खेलते जाए. आप देखें बहुत सी गेम्स ऐसी हैं जो अक्सर स्टूडेंट जब खेलने शुरू करते हैं तो वो उसमें ही बिज़ी रहते हैं और अब अक्सर स्टडीज़ को अवॉइड कर देते हैं. Now, review of today's lecture. In this lecture, we cover 3 टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा पुराना था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारी एक क्लासिफिकेशन रह गई थी, तो यहाँ हमने कंप्लीट किया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड कैपेसिटी. और इसमें हमने 4 कंप्यूटर को डिस्कस किया: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. एंड वी ऑल्सो डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी. कंप्यूटर के इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या है. देयर आर सो मेनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड ऑल्सो एज वेल एज देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो. इंटरनेट एंड सोसाइटी. इंटरनेट विच इज़ प्ले एट दैट टाइम ऑल द पीपल्स लाइफ वेरी वाइटल रोल. तो हम इंटरनेट पर किस तरह इंटरनेट हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है, हमारी सोसाइटी को असरअंदाज हो रहा है, तो आज हमने इस लेक्चर में इन तमाम चीज़ों को कवर किया. आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड इंशाल्लाह ताला व्हेन यू लिसन द लेक्चर तो आपको ये तमाम चीज़ें जो मैंने इसमें लेक्चर में एक्सप्लेन की हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी इंशाल्लाह ताला. Now assignment: name the 5 most powerful supercomputer in the world 2020 and in which country it belongs. आपको 5 मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखना है और उनकी रैंकिंग करनी. कौन सा इस वक्त नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है, कौन सा नंबर 3 है, कौन सा नंबर 4 है, कौन सा नंबर 5 है और उसके आगे उसके कंट्री नेम लिखना है.
डिफाइन नेटवर्क एंड इंटरनेट, आपको सिर्फ नेटवर्क की और इंटरनेट की डेफिनेशन लिखनी है या डिफाइन करना है उसको. राइट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं, तो आपने वो लिखने हैं. नंबर 4, what do you mean by the social media? What are the top 10 social media application? सोशल मीडिया की टर्म आप बहुत सुनते हैं, मैंने अपने लेक्चर में भी यूज़ की है, तो आपने बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल मीडिया, और आपने टॉप जो सोशल मीडिया के लिए जो टॉप 10 या टॉप 10 एप्लीकेशन जो यूज़ होती हैं वो आपने लिखनी है. आई होप स्टूडेंट you enjoy the lecture and you will do the assignment on time and send it to me as you complete it. ठीक है? ओके बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.